مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ میں بڑا مشکور ہوں اپنے بھائی سیرل کے لیے، مسز سیرل کے لیے، جنہوں نے ایک اچھا اور بہترین چینل سٹارٹ کیا۔ میری دعا ہے کہ میں اپنے بھائی کی اس خدمت میں شامل ہوتے ہوئے دعا کو بھی ہوں اور فزیکلی بھی پریکٹیکلی بھی ان ہو کے ہم بہت سوں کو ریچ کر سکے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے سلیپ۔ جب میں سلیپ پر آتا ہوں تو سلیپ کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے پاس ہارڈلی شاید کوئی 10 سے 12 منٹ کی یہ ٹوٹل ڈسکشن ہوگی۔ اس ٹوٹل ڈسکشن میں امید کرتا ہوں کہ جتنے ہمارے ساتھ رہیں گے اور جتنے ہمارے اس وقت کی اس ریکارڈنگ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آخر تک دیکھیں گے، وہ ڈیفینیٹ برکت پائیں گے۔ میرے عزیزو، سلیپ وہ کام ہے جو مسیح یسوع کرنے کے لیے اس دنیا پر آئے۔ سلیپ کا کام وہ کام ہے، سلیپ کا منصوبہ وہ منصوبہ ہے جس کے لیے ایک بادشاہ نے اپنا آسمانی تخت چھوڑا اور وہ زمین پر ہماری نجات کے لیے، ہمارے کفارے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے بدلاؤ کے لیے، ہمارے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے وہ اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہمارے جیسے ہو کر رہنے آئے۔ مسیح یسوع جب پیدا ہوئے، 30 سال کی عمر کو پہنچے تو وہ چل کر یوحنا بپتسمہ لینے والے کے پاس پہنچتے ہیں، اور وہاں پر اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے انہوں نے اپنی تبلیغ کا سٹارٹ کرنا تھا، وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں تو یوحنا اس کو دور سے دیکھ کر کہتا ہے، آئے ربی، آئے استاد، میں تو تیرے تسمے کھولنے کے برابر نہیں اور تو مجھے پانی کا بپتسمہ لینے کے لیے بولتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اب تو اس کو ہونے ہی دے، کیونکہ خدا کی مرضی پیچھے بھی۔ جیسے ہی وہ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں اور اوپر پانی سے باہر نکلتے ہیں، آواز آتی ہے کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یہ آواز بائبل میں ڈسکرائب ہے کہ یہ خدا باپ کی آواز تھی، اور یہ بولنا، یہ فکرہ، یہ جو سنٹنس ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ اس کا اور اس کے بیٹے کا آپس کا رشتہ مہر کر دیتا ہے۔ یہاں پر اس کی خدمت کا شروع ہو رہا ہے، اور شروع میں ہی خدا اپنے بیٹے کے بارے میں مہر کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب یہاں پر سے ہی ہر انجیل شروع ہوتی ہے اور اس پوری چیز کو احاطہ کرتی ہے۔ یہاں سے شروع ہونے والی خدمت، یہاں سے شروع ہونے والی تبلیغ جا کر رکتی کہاں ہے؟ سلیب پر۔ ہر چیز جو پلان ہوئی تھی وہ یہاں سے شروع ہو کے سلیب تک جا رہی ہے، اور سلیب وہ اینڈ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ کی اور میری فتح ہم کو ملتی ہے۔ میرے عزیزو، میں اسی سلیب کا ایک چھوٹا سا حصہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پوری سلیب کو، پوری مصلوبیت کے عنوان کو کور کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے دنوں، گھنٹوں، مہینے چاہیے ہوں گے شاید۔ میں ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے کلام میں سے پڑھوں گا۔ بائبل مقدس میں مرکز کی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 39ویں آیت میں آپ کے لیے تلاوت کیے چاہتا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، اور صوبہ دار اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا، بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے۔ بے شک یہ آدمی خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، جس بات کو خدا باپ نے خود سے کہا، جب اس کی تبلیغ شروع ہوئی، وہاں سے لے کر یہاں تک آتے آتے جب مسیح یسوع عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یروشلم میں داخل ہونا، بڑی تاج پوشی اور بڑے نعرے اور بڑی کھجوروں کی ڈالیاں لہرانا، اس کے بعد ایک ہولی ویک کا پورا پروسیجر ہے، ڈے بائی ڈے سائلنٹ ہے، ہر ایک ایکٹیویٹیز ہیں،
उन एक्टिविटीज के थ्रू स्टेप बाय स्टेप फंसा के बाद आगे चलकर पकड़ा जाना, अदालत में जाना, अदालत में कोड़े लगना और उसको मसलूब किया जाना, उसको मारा कूटा जाना, उसके मुंह पर थूका जाना, उसके सर पे कांटों का ताज रखना, सब कुछ हो चला और वो सलीब पर ऊंचे पर टांगा गया। और जब ये सारा सिनेरियो उस रोमन सूबेदार, उस रोमन सरदार, उस फौजी लीडर के सामने हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो उस फौज के दस्ते का, जो इस सारी एग्जीक्यूशन का सुपरवाइजर था, वो उसका लीडर था। जब उसके सामने सारा कुछ हो रहा था तो वो आखिर में जब वो दम दे रहा था तो उसने उसको कन्फेस किया कि बेशक ये आदमी, कौन सा आदमी? जो मसीह यीशु सलीब पर ऊपर हमारे और आपकी गुनाहों की माफी के लिए टांगा गया था, वो वहां पर मौजूद था। और उसको देखकर वो ये कहता है, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा और फिर उसके साथ इसको क्लोज करते हैं। एक ओवरऑल देखा जाए तो ये मसीह यीशु एक शख्स है और उसके सामने खड़ा शख्स दूसरा है, और इन दोनों के बिटवीन की ये आयत है। एक शख्स कौन है? वो नासरत से है और लिखा गया है कि नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती। एक वो शख्स है जिस पर जुर्म आयद है और वो कहा गया है कि इसको हैंग टिल डेथ करो, सलीब पर चढ़ाओ। एक तरफ यहूदी है, बाय कौम, बाय कम्युनिटी, वो एक यहूदी था। वो सब कुछ था जो वो उस पर लगा दिया गया हुआ था, और हर बुरी बात, हर अच्छी बात उन्होंने अपने पास रखी हुई थी जो पीछे थी, और हर बुरी बात उस पर लगा दी गई हुई थी। उसको समझने वाला दूसरा शख्स एक रोमन था, जो बचपन से रोमी स्कूलों में पढ़ा था, रोमी कल्चर में, रोमन कल्चर में बढ़ा था। उसको ये पता था कि यहूदी नखिद होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसी कौम है कि उनको बिल्कुल अपने पांव की ठोकर पर रखना चाहिए। दूसरा, उसको वो नासरी वाला पता था कि ये नासरत से है, यहां से कोई अच्छी चीज नहीं निकलती। तीसरा, उसके सामने अदालत में उस पर प्रूफ था कि वो मुजरम है, इसीलिए उसको सलीब पर चढ़ाया जा रहा था। उसका माइंडसेट प्रॉपर बना हुआ था कि वो एक मुजरम है जिसको वो उसकी मौत की एग्जीक्यूशन करा रहा है। दूसरी तरफ यीशु मसीह थे, जो अपने बाप का मंसूबा पूरा कर रहे थे, बाप की मर्जी पूरी कर रहे थे। और मेरे अजीजों, जब एंड था तो वो शख्स इस एक नतीजे पर पहुंचा और बोल पड़ा कि बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। इस नतीजे पर पहुंचने के लिए शायद वहां पर खड़ा हुआ मजमा, जो उसके पीछे नारे लगा रहे थे, पिछले वीक में वो नारे लगा रहे थे कि ये हमारा बादशाह है, होशाना होशाना मुबारक, जो खुदा के नाम पर आता है। और इस वीक में वो नारे लगा रहे थे 4 दिनों के बाद, इस वीकेंड पर, कि इसको फांसी दो। वो मजमा, वो हजूम ये ना समझ पाया कि सलीब पर चढ़ाया जाने वाला ये शख्स खुदा का बेटा है। उनके साथ फकीर और फरीसी थे, वहां वे रब्बी थे, वहां पे काहिन थे, वहां उनसे लोग पूछने आते थे उनसे कि शरई मसले मसाइल इस तरह से हैं, इस तरह से, इस तरह से है, इसका क्या जवाब? वो शरीयत को बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में समझते थे, लेकिन ये ना समझ पाए कि ये शख्स जिसकी इस वक्त मसलूबियत की एग्जीक्यूशन में हम हिस्सेदार हैं, ये असल में खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा जान पाए। कौन जान पाया? जो जिनके सामने मरियम ने, कुंवारी ने एक बेटे को पैदा किया, वो लोग ना जान पाए, हालांकि ये बड़ा सुपरनैचुरल काम था। जान पाया तो कौन जान पाया? अंधा जान पाया। जब वो दूर से आ रहा था, वो पैदाइशी अंधा एकदम से आवाजें लगाने शुरू कर देता, कहता है, आए इब्ने खुदा, आए इब्ने खुदा, मुझ पर रहम कर। वो जान गया था कि ये इब्ने खुदा है। जब वो डिमोनिक, वो जो जिसमें लश्कर था, वो जब सामने आया तो बदरूहें जानती थी, वो कहती हैं, हम तुम्हें जानती हैं, तू खुदा का बेटा है। और उसने उसको शटअप करवाया, उसको उन्होंने चुप करवाया, उनको ये कहा कि खबरदार अगर किसी को बोला या इस तरह से शाउट किया,
क्यों? क्योंकि उस वक्त टाइम नहीं था। चारों अनाजील, पूरी बाइबल कह लूं मैं तो, इस बात के ही साइकिल में, सर्कल में घूमती हैं कि ये साबित करती हुई कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है, जो हमारे कफारे के लिए, हमारी निजात के लिए, हमारा निजात दहिंदा होकर आया है। और बाइबल के इस सीक्वेंस में, उनकी जमीनी जिंदगी में जो आखिरी शख्स है जो इस बात का इकरार करता है, वो गैर अक़वाम में से, रोमियों में से ये सूबेदार है, जिसने अमली तौर पर बोल कर कन्फेस किया, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, सलीब के इस काम को वो समझ गया। क्यों? क्योंकि इसी आयत में अगर मैं गौर से पढ़ूं तो लिखा है, और सूबेदार जो उसके सामने खड़ा था। समझने के लिए, इस बात को ले लेने के लिए मुझे सलीब के सामने खड़ा होना पड़ना। और सामने खड़े होने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो है इंग्लिश में ऑपोजिट। He was standing opposite to cross। और ऑपोजिट के लिए जो यूनानी असल में, जो मतन में जो इस्तिलाह यूज की गई है वो है ऑपोसिटो। ऑपोसिटो का मतलब ये है कि मैं और अगला बंदा जो भी मेरी अगेंस्ट है, वो हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं। हम एक दूसरे के साथ एग्री नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मुखालिफ है, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की रिवर्स डायरेक्शन में। वो सामने खड़ा था पोजीशन के हिसाब से नहीं, माइंडसेट के हिसाब से भी, क्योंकि वो रोमी था, उसकी तालीम रोमी थी, वो यहूदियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। लेकिन उसके बावजूद वो कन्फेस करता है, क्योंकि वो समझ गया कि मैं सलीब के पास खड़ा हूं और सलीब का काम एक बड़ा काम है। क्यों? लिखा है यहां, यही इसी आयत में, और सूबेदार जो उसके सामने खड़ा था, उसने उसको यूं दम देते हुए देखकर, सलीब के काम को देखने के लिए आपको सलीब के सामने आना पड़ता है। आपको सलीब के सामने जब आप आकर खड़े होते हैं, तो फिर यहां सलीब रहती है, यहां आप रहते हैं। और सलीब, मैं पूरे दावे के साथ इस बात को साबित कर सकता हूं, जो शख्स सलीब के सामने आता है, हो ही नहीं सकता कि उसकी जिंदगी तब्दील ना हो ही नहीं सकता कि सलीब उसकी जिंदगी में काम ना करे, हो ही नहीं सकता कि सलीब उसकी जिंदगी में काम करके उसको एक कुफारे में, निजात में, जिंदगी में नया तब्दील ना कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सलीब आपकी जिंदगी पर असर करती है, और ये गैर अक़वाम का जो शख्स है वो भी कन्फेस करता है। अगर बाइबल के आखिरी पन्नों में देखें तो कुछ नक्शे पाए जाते हैं। वहां पर एक हैकल का भी नक्शा, हैकल के नक्शे को देखें तो वहां पर बहुत सारे हिस्से हैं। पाक मकाम है, मज़बा है, वहां पर औरतों वाला हिस्सा है, वहां पर बनी इसराइल का हिस्सा अहाता बना हुआ है, और जो सबसे बड़ा हिस्सा देखा जाए तो वो है गैर अक़वाम का हिस्सा। नक्शे के मुताबिक, यहूदियों के मुताबिक शायद वो फजूल ही था, इसीलिए उन्होंने वहां पर कारोबार शुरू कर दिया हुआ था, जिसको खुदा मसीह यीशु ने जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो उन्होंने उसको वहां से उखाड़ा पुछाड़ा और कहा, दूर हो जाओ यहां से, ये कारोबार यहां नहीं होना चाहिए। उनकी परसेप्शन ये थी कि गैर अक़वाम का क्या काम है, ये शायद नक्शे में गलती हो चुकी हुई। लेकिन मेरे अजीजों, आज अगर हम उसको समझें तो ये मेरे और आपके हिस्से का, ये सूबेदार के हिस्से का कन्फेशन था। जो शख्स ये मुकाशफा जान जाता है सलीब के सामने आने पर कि ये शख्स खुदा का बेटा है, वो उस हैकल में जगह पा लेता है। हालेलुया। अब आखिरी बात जो मैं जिसको करके क्लोज करता हूं, लिखा है, देखकर बेशक ये आदमी खुदा का बेटा है। उसने ये नहीं कहा कि बेशक मसीह खुदा का बेटा है। जब मसीह खुदा का बेटा कहते हैं तो इसका मतलब है कि ओवरऑल आज और आपके और मेरे वाली अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा है। क्यों? हमारी कायलियत है, हम इस बात पर कलाम की आयतों को पढ़कर कायल हो चुके हैं कि हम वहां पर हैं। लेकिन ये शख्स ये कहता है, यीशु मसीह को नहीं जानता, ये यीशु मसीह की तालीमात को नहीं जानता, ये बल्कि स्पेसिफिकली खुदा मसीह यीशु को वहां पर सलीब पर चढ़े हुए को कहता है, ये आदमी, ये शख्स खुदा का बेटा है। साबित करता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, चाहे उसके बारे में आप जानते हो या ना जानते हो, वो है खुदा का बेटा। और जो शख्स इस फेथ में आ जाता है, ये मान लेता है, ये कबूल कर लेता है कि मैं उसका और वो मेरा है और वो खुदा का बेटा है, उसके वसीला से हम उसके वारिस ठहरते हैं, मेरे अजीजों, वो जिंदगी पाते हैं, वो निजात पाते हैं,
वो सलीब के पैगाम को कबूल कर लेते हैं, वो इस सलीब के पैगाम से फैज हासिल करते हैं, वो इस सलीब के पैगाम से बरकत हासिल कर लेते हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी में भी ये चैलेंज है, इस सीजन में सलीब के पास आए। और आखिर सलीब के सामने खड़े होना और सलीब के पास जाना, ये दोनों बातें एक तरह की है। सामने खड़े होने का मतलब है ऑपोजिट, जैसे वो सूबेदार उसको समझता नहीं था, ऑपोजिट खड़ा था। लेकिन दूसरी बात उसी सेंस को देखें तो वो उसके करीब भी खड़ा था। आज आप सबको दावत है, सलीब के पास आए, सलीब के करीब आए। जो सलीब के करीब आएंगे वो बरकत पाएंगे, जो सलीब के करीब आएंगे वो ही जान पाएंगे कि ये खुदा का बेटा है। थे वहां पर औरतें थी, वहां पर फौजी थे, वहां पर बड़ा हजूम था जब ये गुलगता के पहाड़ी पर खोपड़ी के मकाम पर ये प्रोसीड हो रहा था। लेकिन इकरार एक शख्स ने किया जो उस सलीब के करीब खड़ा था। खुदा आप सबको बरकत दे।